Hello everyone, my name is Yamini Tukral and I welcome you to Adda 24/7 School. So बच्चों आज हम चैप्टर 14 इकोसिस्टम का दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है एनर्जी फ्लो एंड द इकोलॉजिकल पिरामिड्स. इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी स्टडीड वाज द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम. व्हाट इज द इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ? द इकोसिस्टम इट इज कंपोज्ड ऑफ abiotic and the biotic components. The biotic components they either interact among themselves or with the abiotic components to compose a ecosystem. Okay, then we came to productivity. Productivity क्या होती है? It is the production of biomass. तो इसके दो तरीके थे, एक तो था ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उससे कैलकुलेट करते हैं, या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. When we talk about gross primary productivity, it is the total amount of biomass produced. It is the total amount of organic matter that is produced. But in net primary productivity, excluding the respiratory losses, gross primary productivity minus the respiratory process, we came to know that what is net primary productivity, the net amount of biomass available for the heterotrophs. Okay, and decomposition, हमने decomposition देखा था कि कैसे जो decomposers होते हैं they act on the dead and decaying organic matter जिससे कि they make nutrients available for the atmosphere for the reuse again. तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी फ्लो एंड द इकोलॉजिकल पिरामिड्स कि एनर्जी कैसे इकोसिस्टम के अंदर फ्लो करती है और क्या हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं. Starting off with the energy flow, all the living organisms they are dependent on the food, on producers directly or indirectly. जितने भी heterotrophs होंगे, जितने भी living organisms होंगे, they are dependent on the food which is produced by the producers directly or indirectly. There is a unidirectional flow of energy. Unidirectional means in one direction. एक ही direction के अंदर जो है flow होता है energy का. From the sun to the producers then to the consumers. सन से एनर्जी आती है ना, फिर प्रोड्यूसर्स उससे अपना खाना और सबका खाना प्रोड्यूस करते हैं, देन कंज्यूमर्स पे जाती है. तो कंज्यूमर्स हम लोग लास्ट बोल सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट लेवल पे फॉल करते हैं, फर्स्ट पे प्रोड्यूसर्स होते हैं. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्लांट्स. PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ये जो है रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड. क्या पता चला हमें? अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज PAR, सबसे पहले हम लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है और उसका फुल फॉर्म लिखना है. सबसे पहले फुल फॉर्म अगर हम लोग मेंशन करें तो फुल फॉर्म क्या है इसका? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन. ठीक है, किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय द प्लांट्स. तो हमें PAR पता चल गया. Ecosystem they are not exempted from the second law of thermodynamics and they need a constant supply of energy to synthesize the molecules they require to counteract the universal tendency towards increasing disorderliness. Okay, तो ये जो है exempted नहीं होते from the second law of thermodynamics. इनमें क्या होता है? constant ecosystem को constant source of energy चाहिए होता है जिससे कि वो अपने molecules को synthesize करते रहे जो कि उनको required है. So the process of eating and being eaten it is called as the food chain. अब जैसे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, दूसरा ऑर्गेनिज्म तीसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, 1 2 3. ठीक है, तो being eaten this second organism it is being eaten by the first and the second organism is being eaten by the third. And the third one eats the second one eats the first. तो हमें क्या पता चल रहा है कि the process of eating, खाने का प्रोसेस और खाए जाने का प्रोसेस जो है जब उसे हम लोग अलाइन करते हैं तो we come across a food chain. इसमें जो है हमारी फूड चेन बनती है in which the energy flow is from producers to consumers. जो एनर्जी फ्लो है हमारा वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उससे कंज्यूमर तक जाता है. सो द ग्रीन प्लांट इन द इकोसिस्टम दे आर कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पिगमेंट. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. क्लोरोफिल पिगमेंट होती है, उससे लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं और उससे जो है खाना बनता है ना. तो इसलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर्स की तरह रखते हैं. तो इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम द मेजर प्रोड्यूसर्स दे आर हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स. अगर हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें तो उसके अंदर जो मेजर प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वुडी एंड हर्बेशियस प्लांट्स. लाइकवाइज प्रोड्यूसर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑफ आर वेरियस स्पीशीज लाइक द फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स.
एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, हमने दो के अंदर इकोसिस्टम को डिवाइड किया था। अब एक्वेटिक के अंदर हमारे कौन से होते हैं प्रोड्यूसर? फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी एंड हाई अप प्लांट्स। और जब हम टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल के अंदर हमारे क्या होते हैं? हर्बेशियस एंड वुडी प्लांट्स। क्या होते हैं? हर्बेशियस, वुडी प्लांट्स। तो हमें पता चल गया दोनों के अंदर क्या होते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स। दोनों के अंदर हमारे प्रोड्यूसर्स कौन कौन से होते हैं? So starting from the plants or the producers, the food chain or rather the food web। जब हम food web की बात करते हैं तो हमें एक नया वर्ड मिला है, food web। Interlinked food chain। इंटरलिंक्ड फूड चेन एट वेरियस लेवल इट इज नोन एज द फूड वेब। अब बहुत सारी फूड चेन अगर कहीं पॉइंट्स पे जाके कोइंसाइड करके वो जुड़ रही है, इंटरलिंक हो रही है, तो वो एक वेब जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। तो इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं? फूड वेब। अगर वो स्ट्रेट लीनियर फैशन में चल रही है तो वो हमारी फूड चेन है कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा ऐसे चलते जा रही है। पर उनके बीच में अगर और भी सारे जॉइंट्स आ रहे हैं, इंटरलिंकेजेस आ रही है, तो वो हमारा फूड वेब बन जाता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि एक से ज्यादा जब फूड चेन लिंक्ड होती है आपस में तो वो हमारा फूड वेब बना देती है? यस, फूड वेब बना देती है। जब हमारी एक से ज्यादा फूड चेन जो है लिंक्ड होती है वो आपस में क्या बना लेती है? फूड वेब बना लेती है। ओके, सो द चेन और द वेब इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंसी। ठीक है, so webs they are formed such that an animal feeds on a plant or another animal and in turn its food is for another। एक एनिमल या फिर प्लांट दूसरे एनिमल या प्लांट पे जब फीड कर रहा है तो वो दूसरे का किसी का फूड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के फूड्स है या फिर वो दूसरे को खा रहे हैं। सो द चेन और द वेब इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। ये लोग जो है आपस में इंटरडिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट है, कोई किसी पे डिपेंडेंट है, सो दे आर इंटरडिपेंडेंट। So they are interdependent. No energy that is trapped into an organism it remains in it forever। जितनी भी एनर्जी जो है ऑर्गेनिज्म ट्रैप करता है वो हमेशा के लिए उस ऑर्गेनिज्म के साथ नहीं रहती है। सो द एनर्जी ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर हेंस इट ईदर पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर और द ऑर्गेनिज्म इट डाइज। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगिनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। टेरेस्ट्रियल फूड चेन होगी ग्रासलैंड वाली, एक्वेटिक, डेट्राइटस। डेट्राइटस मतलब जो डिकम्पोजर्स की होती है। तो अगर एक प्रोड्यूसर के पास एनर्जी आई, या तो वो उसे कंज्यूमर पे पास ऑन करेगा या फिर वो खुद ही मर जाएगा। तो मतलब ये इससे पता चलता है कि एक चीज के पास जब एनर्जी होती है, एक चीज क्या एक ऑर्गेनिज्म के पास जब एनर्जी होती है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास या फिर लिविंग थिंग के पास जब एनर्जी होती है, उसे या तो वो पास ऑन करनी पड़ती है या फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है मर जाता है, वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। तो इसे नो एनर्जी दैट इज ट्रैप्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म इट रिमेन्स इन इट फॉरएवर। कोई भी एनर्जी जो है पूरे टाइम के लिए एक ऑर्गेनिज्म के पास नहीं रहती है। So the process of eating and being eaten it is known as the food chain in which the energy it flows from the producers to the consumer। तो the process of eating खाने का और खाए जाने के उस प्रोसेस को हम लोग फूड चेन बोलते हैं और जो एनर्जी फ्लो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक रहती है। सो ऑल दी एनिमल्स दे डिपेंड ऑन दी प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे कि मैंने बताया या तो वो उन प्लांट्स को कंज्यूम कर रहे होते हैं या फिर उनसे डिराइव्ड प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हैं। दे आर हेंस कॉल्ड दी कंज्यूमर्स। हम लोग जो उन पे डिपेंडेंट है हम लोग सारे के सारे कंज्यूमर है, या फिर मैं बोल सकती हूँ जो भी हेटेरोट्रॉफ्स है वो सारे के सारे कंज्यूमर है ना। जो भी हेटेरोट्रॉफ्स है वो सारे के सारे हमारे कंज्यूमर्स है। If they feed on the producers, the plants, they are called as primary consumers, and if the animals eat other animals, which in turn eat the plants, they are called as secondary consumers। अगर ये हमारा प्लांट है, इसके ऊपर एक एनिमल डिपेंडेंट है, एनिमल सीधा इसको खा रहा है
और जो दूसरा एनिमल है वो इस एनिमल को खा रहा है, जो कि वो एनिमल प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और ये हमारा प्रोड्यूसर हो गया। ऐसा ही हुआ, प्राइमरी जो कंज्यूमर है वो सीधा के सीधा प्लांट को खा रहा है, और सेकेंडरी कंज्यूमर उस एनिमल को खा रहा है जो कि उस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऐसे ही सेकेंडरी आया, फिर उस एनिमल को जो खाता होगा वो थर्ड, मतलब टर्शरी कंज्यूमर। ऐसे चलते चलते हमारे जो है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आ जाते हैं। So the primary consumers will be herbivores क्योंकि they feed on plants। ये सीधा के सीधे प्लांट्स पे फीड करते हैं। मेरे को सब एग्जाम्पल बताओ हर्बीवोर्स के। हर्बीवोर्स के एग्जाम्पल बताओ क्या होते हैं। बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। हमारी काव हो गया, गोट हो गई, ये हमारे हर्बीवोर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। सो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। सब कॉमन हर्बीवोर्स दे आर इंसेक्ट्स, बर्ड्स, मैमल्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड मोलस्क इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। जो मोलस्क है दे विल फीड ऑन दी फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि क्या है, प्रोड्यूसर्स है। मोलस्क दे फीड ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स, जो कि हमारे प्रोड्यूसर्स है। तो कंज्यूमर्स दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स दे आर, और कार्निवोर्स, और मोर करेक्टली प्राइमरी कार्निवोर्स, ठीक है। जो कंज्यूमर इन हर्बीवोर्स पे फीड करते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, पर प्राइमरी कार्निवोर्स बोलेंगे। सो दोज एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर्स फॉर फूड आर लेबल्ड सेकेंडरी कार्निवोर्स, और वो क्या होंगे, हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे। देखो ये हमारा प्लांट है, इस पे जो पहला आएगा कंज्यूमर डिपेंडेंट वो प्राइमरी कंज्यूमर है, पर वो क्या है हमारा वो हमारा है हर्बीवोर, है ना। जो प्राइमरी है वो हर्बीवोर है। उसके बाद में जब सेकेंडरी आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर वो क्या है, हमारा प्राइमरी कार्निवोर है, क्योंकि वो एनिमल पे फीड कर रहा है। और जब टर्शरी कंज्यूमर आएगा तो वो क्या है, हमारा सेकेंडरी कार्निवोर। तो ये इसकी लेबलिंग ऐसे है कुछ। जो पहला वाला एनिमल है वो तो हमारा हर्बीवोर है, तो इसलिए जब सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा तो वो हमारा प्राइमरी कार्निवोर होगा, और जब टर्शरी कंज्यूमर आएगा तो वो हमारा सेकेंडरी कार्निवोर होगा। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक ये इनकी लेबलिंग से, क्योंकि ये आगे जाके टर्म्स आती हैं तो फिर इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है। जब हम एग्जाम के अंदर देखते हैं हम कहते हैं ओहो ये तो प्राइमरी कंज्यूमर है, तो ये प्राइमरी कार्निवोर क्यों नहीं है, ये हर्बीवोर क्यों है। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि इसकी लेबलिंग जो है कैसी है, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो सिर्फ प्लांट पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो हर्बीवोर है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो हमारा एनिमल पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो प्राइमरी कार्निवोर है, क्योंकि वो पहला ऐसा एनिमल आया फूड चेन के अंदर जो कि एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम लोग उसे प्राइमरी कार्निवोर बोलते हैं। और प्राइमरी कंज्यूमर को हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं, क्योंकि वो सीधा प्लांट पे डिपेंड होता है। सो ग्रेजिंग फूड चेन के अंदर आप देख सकते हो ये ग्रास है हमारी प्रोड्यूसर, गोट जैसे कि मैंने बताया जो प्राइमरी कंज्यूमर है हर्बीवोर, मैन जो है सेकेंडरी कंज्यूमर वो सीधा गोट को खाता है, और आगे जो भी होगा वो आ जाएगा, ठीक है। सो द डेट्राइटस फूड चेन इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। जब हम डेट्राइटस फूड चेन की बात करते हैं तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से जो है राइज होती है। इट इज मेड अप ऑफ डीकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। स्टार्टिंग इसकी किससे होती है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। तो जो इसके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सीधा का सीधा जो है हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म से होंगे, जो कि डीकम्पोजर्स ही होते हैं, और वो जो है डेड और डिकेइंग पे फीड करेंगे। तो हमारे इसके एग्जाम्पल है फंजाई एंड बैक्टीरिया, एंड दे आर ऑल्सो नोन एज दी सैप्रोट्रॉफ्स। सैप्रोट्रॉफ्स द एनिमल्स feeding on dead and decaying animal or plant matter। यही था, ये हमारा सैप्रोट्रॉफिक रिलेशनशिप होता है, जिसके अंदर जो होस्ट है वो डेड होता है, जो होस्ट होता है वो डेड होता है, और जो सैप्रोट्रॉफ होता है वो उस पर फीड कर रहा होता है। तो द सैप्रोट्रॉफ्स दे आर द एनिमल्स फीडिंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर। सो द डीकम्पोजर्स दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि डेड और वेस्ट मटेरियल को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो कि सब्सिक्वेंटली वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो द नेचुरल इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन फॉर्म्स द फूड वेब, जो कि मैंने आपको बताया द इंटरलिंक फूड चेन इट इज नोन एज द फूड वेब।
तो डीकम्पोजर्स जब हमारे डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड कर रहे होते हैं, वो बाहरी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर देते हैं डेड और वेस्ट मटेरियल को इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि वही एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो उससे न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो पूरे एनवायरनमेंट में रीयूज के लिए उसे अवेलेबल करा देते हैं। सो हमारे डिफरेंसेस है बिटवीन द ग्रेजिंग फूड चेन एंड द डेट्राइटस फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन की जब हम बात करें, इसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी जो है प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है, और डेट्राइटस फूड चेन के अंदर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट्राइटस और द डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। सो लेस एनर्जी फ्लोज थ्रू दिस, डेट्राइटस के अंदर मोर एनर्जी, क्योंकि वो एक डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करके उससे एनर्जी डराइव कर रहे हैं, तो उसके अंदर अपनी भी तो एनर्जी थी, तो इसके अंदर ज्यादा एनर्जी फ्लो करती है। सो ग्रेजिंग फूड चेन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम इट इज द मेजर कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर, और डेट्राइटस इट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इट इज द मेजर कॉन्ड्यूट फॉर एनर्जी ट्रांसफर। ये जो है बेसिक डिफरेंसेस हैं बिटवीन द ग्रेजिंग एंड द डेट्राइटस फूड चेन। In aquatic ecosystem, grazing food chain is the major conduit for energy flow. As against this, in terrestrial ecosystem, a much larger fraction of energy it flows through the detritus food chain than through the grazing food chain. जब हम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है a large amount of energy it flows through the detritus food chain. ग्रेजिंग फूड चेन से हमें इतनी एनर्जी डिराइव नहीं होती जितनी हमें डेट्राइटस फूड चेन से होती है। सो द डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स टू फॉर्म द फूड वेब, सो some of the organisms of detritus food chain they are prey to the grazing food chain animals, and in a natural ecosystem some animals like cockroaches, crows etc they are omnivores. इसके अंदर क्या होता है कि कुछ जो detritus food chain के organisms होते हैं वो grazing food chain के prey होते हैं। जो ग्रेजिंग फूड चेन वाले होते हैं वो प्रेडेटर्स होते हैं, और जो डेट्राइटस फूड चेन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर दी प्रे। और इसमें कुछ ओमनीवोर्स भी होते हैं जैसे कि कॉकरोचेस, क्रोज एक्सेट्रा। So these natural interconnection of the food chain it is known as the food web. So the organisms they occupy a place in the natural surroundings or in a community according to their feeding relationship with the other organism. तो organism को हमारे natural surrounding के अंदर जगह कैसे मिलती है? By their feeding relationship with the other organism. So based on the source of their nutrition or food, organisms they occupy a specific place in the food chain and that is known as the trophic level. अब हमारी एक नई term आती है trophic level. तो based on the feeding habits, based on the nutrition, based on the food, organisms जो है इकोसिस्टम के अंदर एक स्पेसिफिक प्लेस ऑक्यूपाई करते हैं। उस प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। कि whether the organism it is acquiring which source of food, nutrition, तो उसके हिसाब से उसे एक जगह दी गई है। जैसे कि हम लोग जब एक जॉब के अंदर जब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ हायरार्किकल लेवल्स होते हैं, है ना, कि पहले सबसे नीचे वाला लेवल फिर ऊपर वाला, बेस्ड ऑन द वर्क दे परफॉर्म, है ना। वैसे ही बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन दे डेराइव, based on the source of their nutrition they have specific place in the ecosystem and that place it is known as the trophic level. different trophic levels होते हैं जो वो ऑक्यूपाई करते हैं, ठीक है। वैसे हमारे यहाँ पे जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग काम करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है डिफरेंट हायरार्किकल लेवल्स लेते हैं, है ना, starting from the PN, the clerk, then the HR, then we can say कोई IT सेक्टर का काम कर रहा है, कोई फैकल्टीज का काम कर रहा है, कोई TL का काम कर रहा है, तो सबकी अपने अपनी जो है हायरार्की डिसाइडेड है ना, एक सबने एक पोजीशन ली हुई है। तो वैसे ही उस पोजीशन को यहाँ पे क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। So the producers they belong to the first trophic level, herbivores the primary consumer to the second and carnivore secondary consumer to the third. ये जो है हमारा ये trophic level चलते हैं। जो primary producer होते हैं they have the first trophic level, primary consumer they have the second trophic level, secondary consumer third trophic level and tertiary consumer fourth trophic level जो कि top carnivore होते हैं। तो इनके एग्जाम्पल्स क्या है? जब हम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो प्लांट्स होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रास, ट्रीज। सेकेंडरी ट्रॉफिक लेवल जो कि हर्बीवोर्स एक्वायर करते हैं वो कौन सा होगा हमारा? जू प्लैंक्टन, ग्रास हॉपर्स, काओ। थर्ड ट्रॉफिक लेवल जो कि कार्निवोर्स होते हैं वो होते हैं हमारे बर्ड्स, फिशेस, वुल्फ। और जो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है जो टॉप कार्निवोर होते हैं वो हमारे होते हैं मैन एंड लायन। तो बच्चों ये हमारा होगा, देखो ये तो प्रोड्यूसर हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर
यानी कि हर्बीवोर, ये हमारा क्या लेगा, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जो फिर उसके बाद में हमारा आया सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या है हमारा प्राइमरी कार्निवोर। प्राइमरी कार्निवोर ये हमारा क्या लेगा, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। और ये है हमारा सेकेंडरी कार्निवोर जो कि टर्जरी कंज्यूमर है, ये हमारा टॉप फोर्थ ट्रॉफिक लेवल लेगा। ये सब के सब जो है इनके एग्जांपल्स है। इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको जो है याद रहे कि हियरार्किकल लेवल कैसे चलता है। सबसे पहला जो है वो हमारा ट्रॉफिक लेवल प्रोड्यूसर लेता है, सबसे टॉप वाला हमारा टर्जरी कंज्यूमर लेता है। So the amount of energy it decreases at the successive trophic levels. When any organism dies, it is converted into detritus or the dead biomass that serves as an energy source for the decomposers. Organisms at each trophic level, they depend those at the lower trophic level for their energy demands. So हर trophic level के साथ जैसे जैसे energy जो है ऊपर जाएगी, प्रोड्यूसर से टूवर्ड्स टॉप कार्निवोर तक जाएगी, तो क्या होगा, एनर्जी डिक्रीज होती है। जब एक ऑर्गेनिज्म मरता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू द डेट्राइटस और द डेड बायोमास, जिसके अंदर जो है इतनी सारी एनर्जी होती है जो कि डीकम्पोजर्स को मिल जाती है, तो डीकम्पोजर्स को उससे एनर्जी डिराइव हो जाती है। देन ऑर्गेनिजम्स एट ईच ट्रॉफिक लेवल, दे आर डिपेंडेंट दोज which are present at the lower trophic level for their energy demand. अब जैसे कार्निवोर है तो वो हर्बीवोर पे डिपेंड करेगा, हर्बीवोर प्रोड्यूसर पे डिपेंड करेगा, तो सब जो है नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल वाले पे अपनी एनर्जी डिमांड्स के लिए डिपेंड करते हैं। Each trophic level has a certain mass of living material at a particular time which is known as the standing crop. हर ट्रॉफिक लेवल के पास एक लिविंग मटेरियल का कुछ मास होता है, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड दैट मास इट इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। सो स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, इट इज द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोमास और द नंबर इन अ यूनिट एरिया। सो द बायोमास ऑफ अ स्पीशीज इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फ्रेश और ड्राई वेट। जब हम बायोमास की बात करते हैं, इट इज एक्सप्रेस्ड ईदर इन द फ्रेश और द ड्राई वेट। So the number of trophic levels in the grazing food chain, it is limited as the transfer of energy it follows 10% law. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर ट्रॉफिक लेवल के साथ जो है हमारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो ये कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, हमारा 10% लॉ फॉलो कर रहा है। दैट इज ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इट इज ट्रांसफर्ड टू ट्रॉफिक लेवल। जैसे कि अगर प्रोड्यूसर लेवल पे 100% एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी, 10 जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर पे कितनी जाएगी, 1 जाएगी। मतलब सिर्फ 10% एनर्जी ही जो है आगे ट्रांसफर होती है, जितनी भी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रहती है फ्रॉम द लोअर टुवर्ड्स द हायर ट्रॉफिक लेवल। तो ये देखो, जो हमारा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है इट इज कंपोज्ड ऑफ प्लांट, सेकंड ट्रॉफिक लेवल हर्बीवोर्स, थर्ड ट्रॉफिक लेवल कार्निवोर्स एंड फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, देखो ये बीच में से इंटरलिंक्ड है, तो ये एक तरीका हमारा, ये एक एग्जाम्पल हो गया फूड वेब का, है ना। ये हमारी स्ट्रेट फूड चेन चल रही है और बीच में से ये इंटरकनेक्टेड भी है, तो ये हमारा फूड वेब का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। इकोलॉजिकल पिरामिड इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोलॉजिकल पैरामीटर विच इज द नंबर, बायोमास, एनर्जी सीक्वेंस वाइज इन वेरियस ट्रॉफिक लेवल। तो पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड हमें ये बताते हैं कि हर ट्रॉफिक लेवल पे या तो कितना नंबर है, कितना बायोमास है, या फिर कितनी एनर्जी है। तो इससे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इजी होता है जानना कि हर ट्रॉफिक लेवल पे या तो अगर नंबर कैसे चल रहा है, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, बायोमास कैसा पैटर्न फॉलो कर रहा है, एनर्जी कैसा पैटर्न फॉलो कर रही है। सो ये सीक्वेंस वाइज जो है अलाइंड होता है और ये इकोलॉजिकल पैरामीटर को जो है रिप्रेजेंट करता है ग्राफिकली। सो इट कैन बी अपराइट, इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप। अपराइट होगा तो मतलब सबसे नीचे सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर सबसे कम है। इन्वर्टेड होगा तो सबसे ऊपर सबसे ज्यादा है, सबसे नीचे सबसे कम है। और स्पिंडल शेप होगा तो कुछ ऐसा ऑलमोस्ट बराबर होगा हर लेवल पे। तो देख लेते हैं कि नंबर, बायोमास और एनर्जी की टर्म्स में हम लोग एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल जो हमारा इकोसिस्टम है उसको कैसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे हम लोग उससे जो है इन्फरेंस डिराइव कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या है और इसके अंदर क्या है। फर्स्ट हमारा आता है पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर की जब हम बात करें, इट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, कि प्रोड्यूसर से स्टार्ट करके टॉप कार्निवोर्स तक कितना नंबर होता है एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स, विद प्रोड्यूसर एट द बेस एंड वेरियस कंज्यूमर एट द सक्सेसिवली हायर लेवल, एंड इट इज जनरली अपराइट। हमेशा जो है, अगर हम लोग ग्रास की बात करें, कि अगर हम लोग ग्रेजिंग फूड चेन की बात करें तो उसके अंदर हमारे प्रोड्यूसर क्या होती है, ग्रास होती है।
ग्रास के ऊपर गोट डिपेंडेंट होगी और गोट के ऊपर मैन। तो ग्रास का अमाउंट तो सबसे ज्यादा होगा, है ना, ग्रास का अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, तो ग्रास हमारी प्राइमरी प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होगी। फिर गोट का नंबर कम होगा जो उस पर फीड कर रही है, और मैन का नंबर तो और भी कम होगा जो उस गोट पे फीड कर रहा है। तो अपराइट ही बनेगा क्योंकि प्रोड्यूसर ज्यादा है ना, प्रोड्यूसर ज्यादा है और आगे जाके कंज्यूमर्स कम है। सो अ पिरामिड ऑफ नंबर इन केस अ बिग ट्री इट इज जनरली इन्वर्टेड। जब हम बिग ट्री की बात करें तो एक ट्री के ऊपर कितनी सारी इंसेक्ट्स डिपेंडेंट होती है, कितनी सारी इंसेक्ट डिपेंडेंट होती है, बहुत सारी। तो उसमें क्या होता है, हमारा कंज्यूमर ज्यादा होते हैं और प्रोड्यूसर कम होते हैं। तो कंज्यूमर का बार ऐसे आएगा और प्रोड्यूसर का कुछ ऐसे आएगा, तो इन्वर्टेड आ जाएगा, इन्वर्टेड आ जाएगा इन द बिग ट्री, इन केस ऑफ अ बिग ट्री। ग्रास के केस में ऐसे आएगा। तो ये अपराइट भी हो सकती है या फिर ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। सो पिरामिड ऑफ नंबर कैन बी आइदर अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि क्या तो अपराइट हो सकता है या फिर इन्वर्टेड हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। इट रिप्रेजेंट द बायोमास एट द वेरियस ट्रॉफिक लेवल्स। अ पिरामिड ऑफ मास इट इज अपराइट एक्सेप्ट इन एक्वेटिक फूड चेन व्हिच इन्वॉल्व्स अ शॉर्ट लिव्ड प्लैंक्टन। सो pyramid of biomass in sea it is generally inverted because biomass of fishes it generally exceeds that of a phytoplankton. तो pyramid of biomass वो हमारा inverted भी हो सकता है, हमारा upright भी हो सकता है। अब हमारे aquatic ecosystem के अंदर जो है वो inverted होता है, पर हमारा जो है grazing के अंदर वो upright होता है। तो it depends. Pyramid of energy it is always upright क्योंकि energy जैसे कि हमने बोला कि वो 10% लॉ फॉलो करती है। एनर्जी ट्रांसफर हमारा 10% लॉ फॉलो करती है, जिसके अंदर एनर्जी जो है प्रोड्यूसर में सबसे ज्यादा होगी तो टर्शरी कंज्यूमर में सबसे कम होगी। 10,000 जूल्स हमारी अगर प्राइमरी प्रोड्यूसर की है तो 1000 जूल हमारी प्राइमरी कंज्यूमर पे जाएगी, सेकेंडरी कंज्यूमर पे 100 जूल और टर्शरी कंज्यूमर पे 10 जूल। 10% ही एनर्जी जो है ट्रांसफर होती है, इसलिए ये हमेशा अपराइट होती है। सो द पिरामिड ऑफ एनर्जी इट इज ऑलवेज अपराइट, कैन नेवर बी इन्वर्टेड बिकॉज व्हेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल सम एनर्जी इट इज ऑलवेज लॉस्ट एज हीट दैट इज एट ईच स्टेप इन फीडिंग, इन डाइजेशन, इन एसिमिलेशन, रेस्पिरेशन। कुछ एनर्जी जो है हमारी हमेशा हीट की फॉर्म में जो है डिसिपेट होती है। तो एक बार आज के लेक्चर में देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा है। हमने देखा है एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। एनर्जी फ्लो के अंदर हमने देखा क्या, फूड चेन देखा, हमने फूड चेन देखा। तो फूड चेन में क्या देखा हमने, फूड चेन के अंदर हमने देखा कि सबसे पहले तो अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है तो उसके अंदर हमारी एनर्जी कहाँ से आती है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन से, है ना। फिर उसके बाद में सबसे पहले आते हैं प्रोड्यूसर्स, फिर आते हैं कंज्यूमर्स, फिर उसके बाद आते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, फिर टर्शरी कंज्यूमर्स। ठीक है, तो ऐसे ही आता है। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं जनरली हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो हर्बेशियस और वुडी प्लांट्स होते हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बाकी जो होते हैं हमारे कंज्यूमर्स होते हैं। तो फूड चेन इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। तो एनर्जी जो फ्लो करती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टुवर्ड्स द कंज्यूमर करती है। इसके अंदर हमारी एक तो एक्वेटिक फूड चेन हो गई, एक टेरेस्ट्रियल हो गई, एक हमारी हो गई कौन सी, डेट्राइटस फूड चेन, जिसके अंदर जो डीकम्पोजर्स हैं दे एक्ट ऑन दी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर और वो उससे एनर्जी डिराइव करके आगे की फूड चेन चलाते हैं। सो उसके बाद में हमने देखा जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे वो हमेशा हर्बीवोर्स होंगे क्योंकि वो सीधा सीधा प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं। जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे वो प्राइमरी कार्निवोर्स होंगे और जो टर्शरी कंज्यूमर्स होंगे वो सेकेंडरी कार्निवोर्स होंगे। तो ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल कुछ ऐसा है। डेट्राइटस फूड चेन जो है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से स्टार्ट होती है विद द हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया विच आर ऑल्सो नोन एज सेप्टोट्रॉफ्स। और जब ये डीकम्पोजर्स जो है एक्ट कर रहे होते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, तो ये क्या करते हैं, दे सिक्रीट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो कि उस मटेरियल को इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है और फिर जो उनसे एनर्जी आती है, जो उनसे न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो एनवायरनमेंट में दोबारा अवेलेबल हो जाते हैं फॉर द रीयूज। डिफरेंसेस बिटवीन द ग्रेजिंग एंड द डेट्राइटस फूड चेन। एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर क्या है, ग्रेजिंग फूड चेन इज द मेजर कंडक्ट फॉर एनर्जी फ्लो और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर डेट्राइटस फूड चेन है। सो ऑर्गेनिजम्स दे ऑक्यूपाई स्पेसिफिक प्लेस इन द इकोसिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल हमने देखे, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इट इज ऑक्यूपाइड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल बाय प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल इट इज conquered by the top carnivore which is the tertiary consumer.
सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेज एट सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। कौन सा लॉ फॉलो करती है? 10% लॉ। प्रोड्यूसर के पास जो होता है 100% एनर्जी होगी तो आगे वो सिर्फ 10% ही सक्सेसिव लेवल्स पे ट्रांसफर होगी, क्योंकि वो जो एनर्जी है जो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यूरिंग द फीडिंग, डाइजेशन, एसिमिलेशन, इसलिए सिर्फ 10% एनर्जी जो है एक लेवल से दूसरे लेवल पे फ्लो करती है। सो ईच ट्रॉफिक लेवल इट हैज सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ पर्टिकुलर टाइम विच इज नोन एज द स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप इट इज मेजर्ड एज द मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फ्रेश और ड्राई वेट के टर्म्स में हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या है? इट इज द इकोलॉजिकल पैरामीटर रिप्रेजेंटेशन इन द ग्राफिक। ग्राफ के फॉर्म में जब हम लोग इकोलॉजिकल पैरामीटर्स जैसे कि नंबर, बायोमास, एनर्जी को डिस्प्ले करते हैं वो हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड होता है। इट कैन बी अपराइट, इन्वर्टेड और स्पिंडल शेप। नीचे वाला जो है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स एक्वायर करते हैं और ऊपर वैसे ही ट्रॉफिक लेवल्स के थ्रू एक्वायर करते हैं। तो नंबर के अंदर क्या होता है? इट कैन बी ईदर इन्वर्टेड और अपराइट। वैसे ही बायोमास के अंदर भी इन्वर्टेड भी हो सकता है, अपराइट भी हो सकता है। एनर्जी जो है हमेशा अपराइट होता है क्योंकि इट फॉलोज 10% लॉ। तो चलिए क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। what is the only source of energy for all ecosystem in the world on the earth? A water, B sun, C plants या फिर D animals। जैसे कि यहाँ पे आंसर बताया सन, इसके अंदर क्या है? हमारा फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जो कि सारे के सारे सिस्टम्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसका, सन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सन। इट इज द ओनली सोर्स ऑफ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द इकोसिस्टम। डेट्राइटस फूड चेन के अंदर ही बस जो है डेड और डिकेइंग जो ऑर्गेनिक मैटर है वो उसकी एनर्जी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is an exception in an ecosystem where the sun is not the source of energy? A deep sea hydrothermal ecosystem, B terrestrial ecosystem, C lake ecosystem या फिर D desert ecosystem। इनमें से कौन सा जो एक्सेप्शन है इकोसिस्टम का जहां पे सन इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी? टेरेस्ट्रियल में सन होता है, लेक में सन होता है, डेजर्ट में सन होता है, सिर्फ डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम के अंदर सन नहीं होता है। तो ए हमारा एक्सेप्शन हो गया, ए हमारा एक्सेप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the spectral range of solar radiation in that photosynthetic organism are able to use in the process of photosynthesis called? अभी मैंने बताया था क्या था वो? photosynthetically active radiation। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, photosynthetically active radiation, PAR। यही होती है वो रेडिएशन जिससे जो है हमारी जितने भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस है वो डिराइव होते हैं और ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। क्या होती है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। On what are the organisms are dependent on their food? A consumers, B producers, C decomposers या फिर D scavengers। organisms किस पे डिपेंडेंट होते हैं for their food? On the producers। जो carnivores, herbivores किस पे डिपेंडेंट होते हैं? producers पे। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये जो है प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर डिपेंडेंट ऑन दी producers. Next question, from which law of energy the ecosystem is not exempted? A 0th, B 1st, C 2nd या फिर D 5th law of thermodynamics। तो हमने सबसे पहला स्टेटमेंट ये पढ़ा था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से जो है ये एग्जेम्प्ट नहीं होता है बिकॉज द इकोसिस्टम इट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एनर्जी टू कैरी ऑन देयर फंक्शंस। तो इसलिए सी आंसर करेक्ट है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो बच्चों ये था हमारा एनर्जी फ्लो एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग जो है सक्सेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बाय बाय।